Sabyasachi, let's tell our viewers about the key highlights of the Prime Minister's address ahead of the budget session. Number one, that very firm appeal made to the opposition. Stay with us, Sabyasachi. We have Congress leader Rashid Alvi joining us on the phone line. The Prime Minister has sent out a message. One, he's urged the opposition to end politics of negativity. He's also reminded the opposition that the parliament is to ensure that you put Desh above Dal. And then he also said that some tried to gag the voice of the Prime Minister. And nobody in this country can do that because this is a mandate of the people and it's the people who chose their Prime Minister. Your first response to the Prime Minister's message, sir? I am unable to understand what is the definition of negative politics. Whether to display the name of Hindu and Muslim in front of your shops, is it positive politics? Whether you say that जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस community का reservation नहीं होने दूंगा, is it positive politics? What is the definition of negative and positive politics? You just let me know. I request Prime Minister, please point out about the negative politics of opposition, about the negative politics of Congress party. You can't. We only raise issues. We point out if you have done something wrong. So, if you are doing negative politics, we just point it out. Okay. Nothing else. Mr. Alvi, the Prime Minister has highlighted that this is the time because when it's about the Parliament, members of Parliament are representatives of the people and they have expectations from their representatives. And one is, like the Prime Minister has been saying, he says that let's work for the people for, the larger vision of taking the country forward instead of indulging in any kind of bitterness. So it's reaching out to the opposition. Bitterness is being created by Prime Minister. If Congress party and opposition want to discuss on NEET issue, what is wrong in it? Why Prime Minister and BJP government doesn't allow it to discuss this particular issue, which has concern with more than 20-25 lakh students of the country? Okay. So who is doing negative politics? Okay. It is BJP and BJP leaders. They are doing this politics. Okay. They are all right. Continuously working against a community. So in its first reaction... Yes, Mr. Alvi, we've taken your points. Thank you so much for joining us this morning. So in their first reaction, the Congress party goes on to say that it's not the Congress, but it is the BJP that indulges in politics of negativity and politics of bitterness. Let's once again, for our viewers, play out that address of Prime Minister Narendra Modi, where he sent a message to the opposition, put Desh first and not Dal. नमस्ते साथियों, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी
हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के
संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है।